بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ ایسے 3 عورت جن کو رمضان میں روزہ رکھنے سے منع ہے، یعنی کہ رمضان میں روزہ رکھنا ان کے لیے گناہ کا کام ہے۔ یہ 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کی مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھے ان میں سے کسی کے بھی روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو عورتوں کے بارے میں کچھ ایسے بات بھی بتانے والے ہیں جن کا جاننا آپ سبھی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اسی لیے آپ سبھی کے لیے آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ آپ آج کا یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے ایک شیئر بھی کر دیں تاکہ رمضانوں کی مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس پہنچ جائے۔ دوستو، روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں ہیں: اسلام، بالغ، ہوش و حواس اور عاقل ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو اور جو اپنی ہوش و حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان مہینے کے روزہ فرض ہے۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلا شرط صحت مند اور تندرست ہونا اور دوسرا محکم ہونا۔ پہلا تو بیمار آدمی اپنی بیمار کی حالت میں اور مسافر آدمی اپنی سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کی مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر یاد رکھے ایسے رمضان کی مہینے میں روزہ رکھنا چاہے تو وہ ایسے لوگ رکھ سکتے ہیں جن کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھے تو ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، یہ بعد میں ان روزوں کو قضا کر سکتے ہیں۔ تو اب جلدی سے جان لیتے ہیں رمضان کی مہینے کی فضیلتیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کے سردار ہے۔ یہ مہینہ دوسرے مہینے سے فضیلت والی اور برکت والی ہے۔ حدیث میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کے سردار ہے اور حرمت کے اعتبار سے ذی الحجہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ رمضان المبارک سب سے بہتر اور افضل مہینہ ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے بہتر ہو، اور منافقی پر کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے برا ہو۔ رمضان قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے، اسی مہینہ میں قرآن نازل ہوا۔ اس کے بارے میں قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ صرف یہی نہیں، جتنے بھی مقدس کتاب نازل ہوئی سب کے سب اسی مہینے میں ہی نازل ہوئی۔ رمضان المبارک میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھولنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ رحمتوں کے نازل ہونے کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے دروازے اعمال کے قبول ہونے کے لیے کھلتا ہے، جس کی وجہ سے اعمال کی توفیق بھی خوب ملتا ہے اور ان کی قبولیت بھی نہایت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ رمضان رحمت نازل ہونے والا مہینہ ہے۔ ویسے تو پورے مہینے رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، لیکن اس مہینے کے پہلے عشرے یعنی پہلے 10 دن حدیث کے مطابق زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہے، کیونکہ وہ عشرہ ہی رحمتوں والا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور ایک پکارنے والا آواز ہوتا ہے، ایک خیر کی طلب کرنے والے متوجہ ہو جا، اور اے شر کی طلب کرنے والے باز آ جا۔ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ سرکش شیطان
शैतान और जिन्नात कैद कर लिए जाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में रिवायत है कि शैतान को जंजीर से सकड़ लिया जाता है। रमजानुल मुबारक मगफिरत और बख्शिश का महीना है। एक रिवायत में है कि रमजान का महीना आने वाले रमजान का महीना तक गुनाहों का एक कफ़ारा है। रमजानुल मुबारक जहन्नम से नाजात का महीना है। रमजानुल मुबारक के ये हर सब रोज में अल्लाह ताला की यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए हर एक शोबे रोज में दुआ जरूर कबूल होता है। प्यारे दोस्तों, आइए हम आप लोगों को बताएंगे 3 औरत के बारे में जिनको रमजान के महीने में रोजा रखना मना है, यानी रमजान के महीने में रोजा रखना उनके लिए जायज नहीं है। रमजान के महीने में इनके लिए रोजा रखना हराम है। अगर किसी ने भी इन तीनों में से रोजा रख लिया तो वो रोजा कभी भी कबूल नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब भी मिलेगा। नंबर 1, हैज की हालत। दोस्तों, सबसे पहले औरत वो है जो हैज की हालत में हो, यानी कि जिसकी पीरियड चल रहा हो। याद रखे, ऐसे औरत के लिए रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है। ऐसी औरत का रोजा रखना जायज नहीं है। हैज वाली औरत रमजान के महीने में रोजा नहीं रख सकते हैं, यानी कि पीरियड्स चलने के दौरान ये नमाज या फिर रोजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम ये नमाज और रोजा उनके लिए हराम होते हैं, यानी नाजायज होते हैं। मगर ऐसी औरतें याद रखे, इस वजह से अगर आपके नमाज और रोजे छूट गए हैं तो आपको चाहिए कि वो छोड़े हुए रोजों को आप बाद में कर ले, यानी उस छोड़े हुए रोजों को बाद में कजा कर लेना चाहिए। लेकिन हैज वाली औरतों को चाहिए कि वो रमजान के महीने में रोजा भूल कर भी ना रखे। अगर कोई औरत हैज की हालत में रोजा रख लेती है तो याद रखे उसका रोजा कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त आजाब होगा। इसके अलावा ये भी याद रखे, अगर किसी औरत ने सिहरी करके रोजा रख लिया हो मगर बाद में दिन में उसका ऐसा हुआ कि हैज शुरू हो चुका है, यानी कि पीरियड्स शुरू हो चुका है, तो याद रखे ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा। उसको चाहिए कि वो बाद में, यानी कि जब पाक और साफ हो जाए तो उस रोजे की अदा करे, यानी कि उस रोजे को बाद में पूरा करे। नंबर 2, निफास वाली औरत। दोस्तों, दूसरी औरत तो वो है जो निफास की हालत में हो। ऐसे औरत को रमजान के महीने में रोजा रखना नाजायज और हराम है। अब कुछ भाई ये पूछेंगे कि निफास क्या होता है, कि औरत के बच्चा जनने के बाद में आगे की मुकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखे, रमजान के महीने में जो औरत निफास की हालत में है तो उन औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोजा रखना मनाही है, यानी कि ऐसे औरतें भी रोजा नहीं रख सकती है। अगर किसी औरत में निफास की हालत में रोजा रख लिया तो याद रखे ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरतों को भी अल्लाह ताला की तरफ से अजाब होगा। इसीलिए निफास वाली औरतों को भी चाहिए कि वो रमजान की महीने में भूल कर भी रोजा ना रखे। लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि जब वो पाक और साफ हो जाए तो छोड़े हुए रोजा को अदा जरूर करे, यानी छोड़े हुए रोजा को बाद में कजा कर दे। नंबर 3, हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। याद रखे, ऐसी औरतों को भी रमजान की महीने में रोजा रखना हराम तो नहीं है, ऐसी औरत को रोजा रखना मनाही तो नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों को छूट जरूर है, यानी कि प्रेग्नेंट औरतें या फिर बच्चों को दूध खिलाने वाली औरतें अगर रोजे की वजह से अपनी या फिर अपने बच्चे की जान जाने की खतरा हो तो फिर ऐसी औरतों को इजाजत है कि वो रोजा ना रखे, यानी कि ऐसी सूरत में 3 औरतों को रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसी औरतें रमजान की महीने में रोजा नहीं रखती है तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि बाद में वो छोड़े हुए रोजों का कजा करे, यानी कि छूटे हुए रोजों को जरूर अदा करे। यहाँ पर एक चीज याद जरूर रखें कि प्रेग्नेंट औरतों को हामिला और निफास वाली औरतों की जैसा रोजा ना रखने की मनाही नहीं है। ऐसे औरतों अगर चाहे तो रमजान की महीने में रोजा रख भी सकती है और नमाज भी पढ़ सकती है, इनका नमाज और रोजा भी हो जाएगा। अब दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं कि कौन से औरत रोजा रख सकते हैं और कौन से औरत नहीं रख सकते हैं, यानी कि कौन से औरत के लिए रोजा रखना जायज है और कौन से औरत के लिए नहीं जायज है। तो पहला औरत ये है जो अपने बुढ़ापे की हालत में हो और अपने बुढ़ापे की हालत की वजह से वो रोजा नहीं रख सकते हैं, या किसी माहिर डॉक्टर ने ये
कह दिया है कि अगर वो रोजा रख ले तो उसकी जान को खतरा है, तो ऐसी औरत रोजा नहीं रख सकते हैं। यानी कि ऐसी औरत अगर रोजा ना भी रखे तो इसको कोई भी गुनाह नहीं है, मगर बाद में अगर वो तंदुरुस्ती यानी सेहतमंद हो जाए तो छोड़े हुए रोजों को अदा जरूर करे। अगर ना हो सके तो उस रोजे का कफ़ारा अदा करे, यानी कि 2 गरीब शख्स को भरपेट खाना खिलाए। नंबर 2, अगर किसी औरत रोजे की हालत में है और अगर उसको किसी सांप ने डस लिया तो वो रोजा तोड़ सकते हैं और इसकी वजह से उसको कोई भी गुनाह नहीं होगा, लेकिन सेहतमंद होने के बाद यानी कि सुस्त हो जाने के बाद उसको उस रोजा का कजा जरूर करना है। नंबर 3, दोस्तों जो बूढ़ी और कमजोर औरत जो गर्मियों की वजह से गर्मी में रोजा नहीं रख सकता हो, उसको किसी माहिर डॉक्टर ने मना कर दिया हो, तो ऐसी औरत को चाहिए कि वो गर्मी की रोजा को छोड़ दे, उनके बदले में वो उन रोजों को सर्दियों में रख ले। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।